Okay, so good morning to everyone. I hope everybody enjoyed the vacation of Ganpati 2 days. So let's come back to the your syllabus and topic. So we are discussing about your paper 4 unit 4 topic, that is your analytical method validation. And out of the few topics we are already covered, and today's topic we will discuss about what is exactly method transfer and what are the issues of your method transfer. So in your syllabus the point is given as the issues of your method transfer, but to understand what are the different issues when we are transfer the method, so definitely you know the basic idea ki what is exactly method transfer, when we do the method transfer, and what is exactly the method transfer. So we will discuss the first about what is the method transfer, and then we will move for the issues of your method transfer. So what is exactly method transfer? ठीक है, so सबसे पहले method means what? Okay, so whatever we are studying in this particular unit, the name of the unit is the analytical method validation. So before to validate any method or to perform any analysis of any compound, the first thing which we'll do, that is your to find out the whatever method is available for analysis of that particular compound, right? If the method is not available, then definitely we will develop the method with respect to the compound and with respect to whatever equipment and whatever facilities available in our laboratory. Based on that, we develop the specific method. When we develop the method to give the assurance on that particular method, we validate the method to confirm that the whatever parameters we are using for analysis of this particular compound, all the parameters are valid and giving the accurate result, whatever expected result is given by this continuously method. To confirm this particular assurance or result, we validate the method. After validation of method, we can use this particular method for analysis of that particular compound. So suppose if you develop the method and validate the method and you want to analysis on your own company, then there is a not that much issue is coming because you itself is develop the method and itself is using the method. But every time it's not happen, right? So sometimes you want to give the method to other laboratories, or you are developing or validating the method from other companies. So definitely you need to transfer your method. So that concept is known as the method transfer. So generally when we actually transfer the method, so simple एक example लेते हैं, जैसे कि suppose in laboratory, okay, so you are a public testing laboratory and you have the develop the method for the different kind of samples. So जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लो कि मैंने we have already developed and validate the method for vitamins analysis और milk sample, ठीक है. So जो कंपनी ने हम लोग को बोला था, वो कंपनी का क्या था, they have the instrument and definitely they are spike, they have actually they are the production unit, but during the production definitely before every batch analysis they need to give the quality control certificate or analysis certificate that whatever written in that particular tetra pack, so that value we are already study. जैसे कि अगर डेफिनेटली उनका लॉट निकलता होगा, हरे जैसे कि थाउजेंड्स टेट्रा पैक निकलते होंगे 1 ml के मिल्क के. सो ईच पैकेट पे उनका लिखा होता है, राइट, कितना इतना एनर्जी, इतने इतने विटामिन. सो एवरी बैच डेफिनेटली दे नीड टू टेस्ट. जैसे कि हम लोग ने देखा था कि फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड इन प्रोसेस टेस्टिंग वो लोग वहाँ पे करते थे उनके लैब में. लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या था, जो भी वो न्यू प्रोडक्ट उन्होंने प्रिपेयर किया था, दे हैव एडेड 6 different types of vitamins, and they want particular method which is specific to all the 6 vitamins should be come into the same HPLC analysis. They don't want to waste the time and energy and definitely lots of reagent to analyze the each and every vitamins with the HPLC. That means 6 column requires 6 different mobile phase requires. So they don't want that. That's why they give their method for development to in our company. So we develop the method in which we are actually analyze all the 6 vitamins. That is, we are giving the two methods, not six, more than 6 vitamins actually. So the six are the water soluble, and there are 3 vitamins which are water insoluble. So we develop the method, and after developing method we validate the method. आफ्टर वैलिडेशन ऑफ मेथड, ठीक है, हम लोग ने उनके 10-12 सैंपल्स इंस्ट्रूमेंट पे करके देखे कि सच में जो भी मेथड्स हमने यूज किया है इज रियली गिविंग द रिजल्ट और नॉट, ठीक है. whenever we confirm that कि yes method is developed and completely validate, so we transfer the method to their laboratory. मतलब क्या है कि मेथड उनके लिए अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस, उनके नॉलेज से या फिर उनके रिक्वायरमेंट पे हम लोग ने मेथड बनाया था,
and now we are giving their methods to them. तो अभी क्या करेंगे, they are using our methods, जो भी method हम लोग ने develop किया था, and they will definitely use for daily analysis of vitamin sample in their laboratory itself, because they have that all equipment and everything, so they don't want to waste money and for giving each and every batch के analysis के लिए उनको outsource करना जरूरी नहीं था, so they just want to develop the method. And उनके पास इतना professional staff नहीं था कि definitely they are do the R&D work, no they don't have the R&D laboratory, or because they have production unit, so उनके पास उनकी specific high specific laboratory नहीं थी जहाँ पे they लोग R&D कर सकते हैं and they can prepare method. So we with the help of R&D we develop that particular method and giving to them. So this process is called as a method transfer. मतलब किसी एक लैब में मेथड डेवलप होता है एंड किसी और लैब में मेथड यूज होता है, ठीक है. सो ये कब होता है, ठीक है, वेन एवर सपोज यू डोंट हैव योर R&D सेंटर, मतलब कहीं पे मेथड डेवलप हुआ है एंड प्रोडक्शन यूनिट कहीं और है, सो जहाँ पे तुम लोग का प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ पे मेथड देना है, सो दैट इज वन ऑफ द मेथड, दैट इज मेथड ट्रांसफर. सपोज देयर ओन लेबोरेटरी, मतलब उनका खुद का प्रोडक्शन यूनिट है एंड उनका खुद का R&D सेंटर है, ठीक है. सो इमेजिन करो, सेकंड एग्जांपल इफ आई वांट टू गिव, दैट इज अ रैप्टाकोस एंड ब्रेड कंपनी वेयर आई हैव टेकन द 3 months ट्रेनिंग. सो वहाँ पे दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग नंबर ऑफ बिस्किट्स. इन्फेंट के जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो पाउडर दूध पाउडर फॉर्म में जो मिल्क होता है उसके पाउडर के प्रोडक्ट्स होते थे. एंड बिस्किट दे आर प्रिपेयरिंग दिस, दे आर वेरी फेमस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बिस्किट्स और कुकीज, स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पज. मतलब जो मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं, सो डेफिनेटली दे वांट सच काइंड ऑफ बिस्किट जो 3-4 महीने, मतलब मोर देन, उसका स्टेबिलिटी काफी अच्छा था. एंड 2 बिस्किट खाने के बाद यू गेट द एनर्जी ऑफ योर फुल मील, मतलब उतना क्वांटिटी वैसे वो बिस्किट्स प्रिपेयर करते थे. सो उनका खुद का R&D सेंटर, देयर है अराउंड 6 to 7 फ्लोर्स का उनका बिल्डिंग था. एंड ग्राउंड फ्लोर पे दे हैव, मतलब उनके अलग अलग सेक्शंस थे. तो जैसे कि बिल्डिंग के एक सेक्शन में उनका पूरा R&D सेंटर था जहाँ पे उनके सारे खुद के लैब थे. माइक्रो की खुद की लैब थी, उसके बाद केमिकल टेस्टिंग की खुद की लैब थी, इंस्ट्रूमेंटेशन का खुद का लैब था, ठीक है. एंड नेक्स्ट बाजू में उनका और एक बिल्डिंग था जहाँ पे उनका प्रोडक्शन यूनिट था, जहाँ पे ह्यूज, मतलब अराउंड 5 किलो ये 5 क्या बोलते हैं फ्लोर का बिल्डिंग होता है उनका, ऐसे कंटेनर्स थे बड़े बड़े जहाँ पे दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग द, या फिर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स वगैरह प्रिपरेशन के लिए दे आर एक्चुअली यूजिंग दैट पर्टिकुलर टैंक्स, ठीक है. तो ये मेथड यहाँ पे यूज करने के बाद वो मेथड को एक्चुअली प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफर करना, जिसको हम लोग और एक टर्म यूज करते हैं, इट इज स्केल अप. मतलब स्मॉल लेवल पे मेथड बनाया है, जैसे कि सपोज जब मैं R&D कर रही थी, दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग द मेथड फॉर स्मॉल स्केल. अभी मुझे सेम मेथड, मतलब प्रोडक्शन के लिए मैंने यूज किया कि ये सपोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड नाउ आई वांट टू एक्चुअली प्रोडक्शन. सो दैट टाइम इज द ऑल्सो मेथड ट्रांसफर. मतलब एक जगह पे मेथड एक्चुअली प्रिपेयर किया है एंड देन यू आर यूजिंग दैट मेथड फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. सो दैट इज नथिंग बट यूर another example of your method transfer. नेक्स्ट सपोज आई वांट टू गिव द वन मोर एग्जांपल, लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी. मतलब मैंने मेथड डेवलप किया है लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि जो मेथड मैंने डेवलप किया है वो सारे जगह पे सेम हो रहा है या नहीं. सो मैं क्या करूंगी कि जस्ट टू कंफर्मेशन कि वॉट एवर, बिकॉज ईच पर्सन टू पर्सन टेक्निक्स अलग होता है, ठीक है. जब कोई प्रिपरेशन मैं करती हूँ and मेरे सामने में अगर सेम मेथड से कोई एनालिसिस, कोई सारी चीजें सेम हो, बट ट्रेनी या फिर पर्सन जो है एनालिसिस करने वाला वो डिफरेंट हो, स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट चेंजेस इन योर रिजल्ट. सो कंफर्मेशन के लिए मैंने मेरा खुद का मेथड बनाया है, लेकिन आई जस्ट वांट टू द रोबोटनेस ऑफ माय मेथड. सो मैंने क्या किया, किसी और पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी में मेरा मेथड दिया, along with I have provided them sample and standard as well, जो कुछ चीजें मैं यूज कर रही थी, ठीक है. बट दे आई जस्ट communicate to them that कि ऐसे ऐसे these are the procedures and these are the standards and these are the samples. Just run the sample in your laboratory with our methods and find out the results. Is their results and my results are matching or not? That is also one kind of method transfer. कि एक ही सेम चीज पे अगर कोई अलग अलग लेबोरेटरी में, मतलब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर हम लोग मेथड यूज करते हैं, सो रिजल्ट सेम आता है नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग मेथड ट्रांसफर करते हैं.
नेक्स्ट कि मेरा खुद का यूनिट है, अभी मेरा वाशिम का जो यूनिट है, मेरा प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे जगह नहीं, सो आई ओपन द न्यू यूनिट इन गोरेगांव। सो सारे मेथोडोलॉजी सारे सेम रहेंगे, लेकिन जैसे मेरा यहाँ पे सेटअप है वैसे मैंने गोरेगांव में सेटअप किया। अभी यहाँ पे जो भी मेथड्स मैं यूज करी हूँ मैं वहाँ पे यूज करूँ। So that is also another kind of method transfers. So along with this example, you can easily understand कि what is exactly method transfer. So method transfer is nothing but the one laboratory से किसी और laboratory में same method use करना, and during the method use करते वक्त जो तुम लोग का results है वो accurately same आना चाहिए. So अगर result accurately same नहीं आता है, so whatever the problem, that problem solve करना is nothing but the issues in your method transfer. एंड वन लेबोरेटरी टू अनदर लेबोरेटरी में जब लोग हम लोग काम करते हैं, या फिर मेथड मोर देन वन लेबोरेटरी में सेम मेथड यूज करते हैं, सो दैट प्रोसीजर इज नोन एज द मेथड ट्रांसफर. ठीक है, सो लेट्स सी द लिटिल बिट क्या बोलते हैं स्लाइड वाला डॉक्यूमेंटेशन वाला लाइंस की डेफिनेटली सी समझना एंड बुकिश लैंग्वेज में होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए तुम लोग को कुछ थ्योरी चाहिए. सो लेट्स read little bit introduction and definition of what is exactly method transfer. So development and validation of suitable analytical method is a critical part of overall drug development and cycle. So for the majority of product, particularly those that are clinically successful, the transfer of analytical method between the laboratories are required. मतलब क्या कि R&D center में तुम लोग ने already method develop किया. Actually it is a critical step to develop the and validation of method. But सारी चीजों को ध्यान में रख के तुम लोग ने finally you are in the last stage where you are actually develop this particular method, and now the main क्या बोलते हैं requirement is you transfer the method from the laboratory to another laboratory where actually you performing the analysis. Okay, because development and validation come to your R&D department, and the using of your method is come to your quality control department where you are actually daily basis for use your sample for the analysis. So now the step is, do you want to require to transfer your method from your one laboratory to another laboratory? आज मैंने माउस नहीं लिया. Okay. So this process is designed to verify, matlab method transfer is the process is designed to verify that the given laboratory is capable of performing the test method for its intended purpose. मतलब method transfer ये जो एक process है, ये process is nothing but a documentation कि what exactly you are performing during the method transfer, what are the precautions you are taking, and after method transferring, before the method transfer and after the method transfer. What are the difference coming to your analysis? इसका proper documentation file में रखना and audit के लिए दिखाना is nothing but the method transfer. So ये जो कुछ भी process करते हैं हम लोग एक laboratory से दूसरे laboratory में रहना is nothing but the design to verify that given laboratory is capable of performing the test method for intended use. जो दूसरे lab में तुम लोग transfer कर रहे हो वो definitely उस method का properly जो तुम लोग का expected result है वही result तुम लोग को आ रहा है is the nothing but the method transfer. So this can be performed either internally means at the same company, जैसे मैंने बोला same company में from one laboratory to another laboratory, example R&D centers to your QC department, or ongoing increases trend in the outsourcing to the external contract research or developing organization is nothing but the to give the confirmation result की जो भी method मैं use करी हूँ मेरे सिवा कोई और भी अगर वो method use करता है तो मेथड का एक्यूरेट रिजल्ट आता है, दैट इज द रोबस्टनेस ऑफ द मेथड. और टू चेक द रोबस्टनेस ऑफ द मेथड मैंने सेम मेथड किसी और कंपनी को आउटसोर्स किया है जस्ट टू कंफर्म. मतलब मेरी खुद की R&D सेंटर है, मेरा खुद का QC यूनिट है, बट स्टिल जस्ट फॉर एक कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, ठीक है, किसी और कंपनी को आई एम रियली सॉरी. वन सेकेंड. Okay, so I have my own company with R&D center and as well as QC analysis, QC laboratory. But still just confirmation मैंने किसी और laboratory में
टेस्टिंग के लिए दिया है मेरा मेथड, मतलब जो मेथड मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ डेली बेसिस पे सैंपल के लिए, सेम मेथड, सेम स्टैंडर्ड, सेम सैंपल मैंने सिर्फ उनको दिया है एंड इनको बोला कि ये मेथड से ये सैंपल एंड स्टैंडर्ड का एनालिसिस करके जस्ट गिव इट अस द रिजल्ट। ठीक है, तो उनका रिजल्ट एंड अपने रिजल्ट में कितने चेंजेस आ रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए, दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेयर maximally we are giving our method to give the assurance that the robustness that method is actually giving the accurate result to other company। ऐसे बहुत बार करते हैं जनरली व्हेनेवर यू आर एक्चुअली डेवलपिंग द मेथड, या फिर बहुत से ऐसे सैंपल्स होते हैं कि आउट ऑफ 100 सैंपल में से 5 सैंपल्स वी आर आउटसोर्सिंग फॉर अदर लेबोरेटरी, तो चेक कि सच में रिजल्ट प्रॉपर है या नहीं। जनरली जब भी प्रोडक्शन या फिर क्यूसी एनालिसिस होता है तो ऐसे बहुत से लोग करते हैं कि अपने सैंपल किसी और कंपनी को देना है एंड उनका रिजल्ट एंड अपना रिजल्ट मैच होना चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी। ठीक है, सो एवरी बैच में से या फिर एवरी 10 बैच में से ऐसे उनका कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रहता है, देन दे आर ट्रांसफरिंग और गिविंग देयर सैंपल फॉर एनालिसिस ऑफ अदर कंपनीज या फिर पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी। Okay, so this is nothing but the introduction of method transfer. So let's see the exactly what is the definition of your method transfer. So as per USP, the transfer of analytical method is defined as the documented process, okay, that qualify a laboratory, that is nothing but the receiving laboratory, to use the analytical method that is originated in the another laboratory whenever that is internal or external of receiving laboratory. So what is method transfer is nothing but the documentation which prove that ki whenever you are transferring your method or giving your method to another laboratory, that results are exactly same as your method which are we are develop and validate in your laboratory. So उसका जो documentation का process है, उस documentation is nothing but the method transfer. So let's move for the next slide. Types of method transfer, ठीक है, तो based upon the method transfer, जैसे कि मैंने बोला कि it's a different kind, जैसे मैंने बोला कि एक R&D सेंटर से प्रोडक्शन यूनिट के लिए जाता है या फिर ड्यूरिंग द एनालिसिस के टाइम पे मेथड जाता है, तो based on that actually there are three types of method transfer, that is nothing but the comparative testing, co-validation of laboratory, revalidation or partial revalidation. So these are the three major type of your method transfer. So ये अभी recently develop हुआ है method transfer में these three types, मतलब as per USP they are giving some guidelines in 2005 or 2006 based on the method transfer कि exactly what is method transfer, how you will exactly transfer the method, whatever documentation you are required, and what are the types of method transfer and what are the issues coming to your method transfer। इसके ऊपर उन्होंने अभी न्यू एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है इन देयर यूएसपी। बेस्ड ऑन दैट देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ योर मेथड ट्रांसफर। सो लेट्स सी द वन बाय वन। मैंने इन डिटेल में नहीं डाला है, जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगी उसके अंदर हर एक मेथड का इन डिटेल नॉलेज है, लेकिन जस्ट रीड करने से फायदा नहीं। सो बेटर यू शुड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट इज द ऑल थ्री टर्म्स। So I just given a definition in each slide and उसके बाद I will explain exactly along with the examples, and for मतलब लिखने के लिए या फिर answers के लिए you can refer the that PDF where in detail the information given for respect to that particular test. ठीक है, so first that is a comparative testing. What is exactly comparative testing? Are you with me? तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? आज एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। Yes, ma'am. हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। So comparative testing is nothing but the analysis conducted on sample from the same lot of the product, that is API और जो भी है, by both the laboratories, and acceptance criteria is met. The acceptance criteria and the acceptance variability are outline of the transfer प्रोटोकॉल। मीन्स क्या है, जैसे मैंने बोला कि मेरा ही प्रोडक्ट है, मेरा ही खुद की लैब है, लेकिन जस्ट फॉर कंफर्मेशन के लिए मेरे बैच में से कुछ सैंपल मैंने किसी और कंपनी को दिए हैं, एंड मैंने मतलब सेम सैंपल का एनालिसिस मैं भी करूंगी, सेम सैंपल का एनालिसिस वो कंपनी भी करेगी, एंड जो दोनों का रिजल्ट है वो आइडियली सेम होना चाहिए, बिकॉज सैंपल सेम है। ठीक है, ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग अपना सैंपल सैंपल मतलब सेम बैच में से दो प्रोडक्ट के सैंपल का एनालिसिस मैंने किए, दो प्रोडक्ट के सैंपल मैंने आउटसोर्स के लिए दिए हैं, एंड डेफिनेटली आई जस्ट वांट द कंफर्मेशन रिजल्ट कि जो कुछ भी वैल्यू मुझे मिले हैं वो सेम है। ऐसा क्यों करते हैं पता है? बिकॉज
मेरी खुद की कंपनी है, मेरा खुद का प्रोडक्शन है, मेरा खुद का R&D सेंटर है, ठीक है। सो यू नेवर नो कि वैल्यू मैच नहीं होती। जैसे कि बैच है, सपोज था, मैंने सपोज थाउजेंड्स शैम्पूज का ये निकाला है, ठीक है। कौन सा शैम्पू लेते हैं सर, सनसिल्क कंपनी में मैं काम करती हूँ। एंड उसके बाद मैं आई एम द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। अभी प्रोडक्शन हो चुका है, प्रोडक्शन के टाइम पे जब मैंने इन प्रोसेस वगैरह टेस्टिंग किया था, रॉ मटेरियल परफेक्ट था, इन प्रोसेस परफेक्ट था। नाउ आई एम कम टू द फिनिश प्रोडक्ट। जब मैं फिनिश प्रोडक्ट के लिए आती हूँ तो मैं माय सैंपल इज सपोज माय सैंपल इज लिटिल बिट फेल इन द विस्कोसिटी एंड क्या बोलते हैं उसका, हाँ, विस्कोसिटी एंड देयर इज अ वन मोर टेस्ट दैट इज इमल्शन, ठीक है। ये दोनों टेस्ट के लिए सैंपल जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया वहां पे नहीं आ रहा, ठीक है। अभी बैच तो पूरा हो चुका है, ठीक है, इतना सारा प्रोडक्शन हो चुका है। एंड विस्कोसिटी कम होने से थोड़ी ना किसी का मतलब जब शैम्पू मार्केट में जाने वाला है तो उसके बाद किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिकॉज ना तो उनके बाल चिपकने वाले हैं, ना तो उनके बाल टूटने वाले हैं, ना तो उनके बाल झड़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा सैंपल ज्यादा विस्कस होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एंड क्या बोला मैंने, नेक्स्ट जो बोला था, सॉरी, इफर सॉरी, अभी मैं वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसे क्या होता है, फोम आता है। तो जो फोम आ रहा है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, बिकॉज वो थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है शैम्पू को। लेकिन उसे इतना इफेक्ट नहीं करने वाला कि किसी के बॉडी के ऊपर बहुत हार्म इफेक्ट होने वाला है, and उसके वजह से देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। सो उसके लिए खाली फुकट में पूरा इतना बड़ा बैच को कैंसिल तो नहीं कर सकते, ठीक है। सो जब मेरा R&D से रिजल्ट मतलब QC से रिजल्ट आए, सो यहाँ से मैंने उनको डेफिनेटली फोन किया कि जो कुछ भी टेस्टिंग के लिए सैंपल फेल हो रहे हैं, जस्ट मैनिपुलेट योर रिजल्ट्स एंड गिव द रिजल्ट दैट इज योर बैच इज सक्सेसफुल। एंड लॉट जो तुम लोग का पड़ा है वो लॉट को रिमूव कर दो, ठीक है। मैं ऐसे कर सकती हूँ बिकॉज आई एम द मैनेजर एंड मुझे पता है एग्जैक्टली क्या है, कंपनी के बाहर किसी को पता नहीं। एंड मार्केट में आने के बाद थोड़ी ना कोई दुकान में से मतलब सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए जाने वाला है। So FDI are giving such type of criteria कि whenever you are removing the batch, ठीक है, so तुम्हारे सैंपल में से कोई सैंपल से तो किसी और लेबोरेटरी का, अभी जो दूसरे लेबोरेटरी को सैंपल जाएगा तो उनके पास एक्चुअली रिजल्ट नहीं होता है। सो आइडियली व्हेनेवर यू आर मतलब रिमूविंग योर बैच फॉर परचेज या फिर लॉट जब बाहर निकलता है, सो दैट पर्टिकुलर बैच के लिए मतलब you require the both the certificate, that is your inbuilt, that is your quality control certificate from your laboratory and quality control certificate from your outsourced laboratory, and दोनों के results match होने चाहिए and within the acceptance criteria के within the होने चाहिए, ठीक है। so then only generally तुम्हारे samples pass होते हैं। मतलब I really don't know कि it is actually FDA के अंदर ऐसे guidelines है या नहीं, but whenever I am working ना वहाँ पे ऐसे बहुत से samples आते थे कॉस्मेटिक्स के स्पेशली, कि उनका जब भी बैच निकलता था तो 10 या फिर 5 बैच में से मतलब एवरी 5 बैच के बाद एक बैच उनका ऐसे था कि उनका सैंपल्स एंड उनके स्पेसिफिकेशंस लिमिट हमारे यहाँ पे आते थे एंड उनका रिजल्ट हम लोग को पता नहीं होता था। सो व्हेनेवर वी आर गिविंग द रिजल्ट्स एंड सपोज रिजल्ट में कुछ मतलब मैच नहीं होता है, सो वहां से आता है कि हम लोग का रिजल्ट इतना है, तुम लोग का रिजल्ट इतना कम कैसे आया, प्लीज रिपीटली एक बार करके देखो, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम फॉर आवर बैच डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज नथिंग बट द कंपैरेटिव टेस्टिंग, मतलब एक मेथड से एक ही लैब सैंपल का दो अलग अलग लेबोरेटरी में टेस्टिंग हो रहा है एंड दोनों का रिजल्ट तो कंपेयर, इसके अंदर क्या है, व्हाट इज अ मेजर थिंग व्हेन यू आर द कंपैरेटिंग टेस्टिंग, दैट इज एनालिसिस कंडक्टेड द सैंपल फ्रॉम द सेम लॉट of the product or API device etc by both the laboratory में, दोनों लेबोरेटरी में सैंपल का सेम मेथड से टेस्ट होगा एंड उनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज अ मेट। So acceptance criteria and acceptance variability are the outline of the transfer protocol। मतलब दोनों के जो भी रिजल्ट्स है वो दोनों को पता नहीं रहेंगे, उसका वो लेबोरेटरी का क्या है अपने लेबोरेटरी का एग्जैक्टली क्या है, एंड आइडियली both the results should be the match because you are using the same method and same procedure on same sample analysis। So अगर दोनों इमेजिन करो कि सपोज दोनों लेबोरेटरी के अंदर मतलब जो भी तुम लोग टेस्टिंग कर रहे हो एंड एवरी टाइम, सो एवरी टाइम योर रिजल्ट इज नॉट मैच,
ठीक है. वन टाइम्स इज ओके कि एखादा पैरामीटर है जिसके ऊपर मैच नहीं हो रहा है, सो वी कैन कम्युनिकेट एंड रिपीट. बट द सेम मेथड से तुम लोग करिए ना, एवरी टाइम उनके रिजल्ट्स एंड तुम्हारे रिजल्ट्स मैच नहीं हो रहे. इसका मीनिंग क्या है कि सेम मेथड होके भी वहां पे जो कुछ भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ तो गड़बड़ है या फिर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहां पे कुछ तो स्टेप अलग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. सो व्हाट आर दैट प्रॉब्लम? To solve that particular problem is nothing but the method transfer to solve their issues. ठीक है. So that is exactly method transfer की कंपैरेटिव मेथड टेस्टिंग की. दोनों लेबोरेटरी में जो भी मेथड तुम लोग ट्रांसफर करे, दोनों के रिजल्ट्स सेम होने चाहिए. दैट इज अ कंपैरेटिव टेस्टिंग विच इज परफॉर्मिंग ऑन द सेम लॉट प्रोडक्ट. मतलब सेम बैच के प्रोडक्ट के लिए सेम मेथड, बट दो अलग अलग लेबोरेटरी में उसका टेस्टिंग होगा एंड उसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे. ठीक है. Okay, we will move for the next slide, that is your next type of method. Okay. Co-validation of the laboratory. So what is exactly co-validation? The transferring laboratory work with the receiving laboratory in an inter-laboratory validation effect on the transfer laboratory use. The assessment is conducted using the transfer protocol to evaluate the reproducibility of the process. तो co-validation लाइज laboratory मतलब एक laboratory में method develop हो चुका है and you are giving the other laboratory to validate your method. मतलब मे बी तुम लोग का खुद का लैब रहेगा या फिर यू आर आउटसोर्सिंग योर मेथड, इज डिपेंड. बट डेवलप होने के बाद वैलिडेशन के लिए मतलब मेथड कहीं और पे डेवलप हुआ है एंड उसका वैलिडेशन कहीं और हो चुका है. या फिर तुम लोग के पास मतलब सपोज यू आर द पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी और यू आर द लेबोरेटरी वेयर द सैंपल इज कमिंग एंड हर उन कंपनी का न्यू सैंपल तुम लोग के पास आने वाला है. So they don't want to develop the method, they have their own method, but from tomorrow itself you are actually testing their products in your laboratory. So before the testing your laboratory, definitely you need to validation of that particular method. जैसे कि imagine करो कि grapes के sample है, ठीक है. तो grapes के sample के अंदर pesticide residue मुझे find out करना है. So they have their own method कि how exactly you are extract the pesticide from the grape juice and how you are analyze with the help of AS या फिर ICP के इंस्ट्रूमेंट पे, ICP-MS पे तुम लोग का एनालिसिस करना है. ठीक है. और उन्होंने ऑलरेडी मेथड तुम लोग को दिया है एंड बोला कि यही मेथड से तुम लोग को एनालिसिस करना है एंड डेफिनेटली दीज आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. तो उसके अंदर हम लोग के सैंपल तुम लोग एनालिसिस करके दे दो. सो डेफिनेटली जब तुम लोग न्यू कंपनी में न्यू इंस्ट्रूमेंट पे कोई न्यू सैंपल का एनालिसिस कर रहे हो फॉर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ FDA और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूर GMP और GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, सॉरी जो भी गाइडलाइंस है, based on that you first of all validate the method, then only you can use this particular method for a particular sample. मतलब भले उन्होंने बोला है कि हम लोग का मेथड completely validate है and proper results आता है, still whenever you are using that method on your laboratory, so before analysis the sample you need to validate that particular method. दैट इज अ को वैलिडेशन. मतलब उस मेथड ऑलरेडी डेवलप है और उन्होंने उनके यहाँ पे मे बी वैलिडेशन किया होगा, मे बी नहीं, लेकिन यू आर परफॉर्मिंग देयर सैंपल इन देयर योर ओन लेबोरेटरी. सो बिफोर दैट यू रिक्वायर द वैलिडेट द मेथड एंड जो वैलिडेट मेथड करने के लिए अगर उनका जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके एंड तुम्हारे क्राइटेरिया मैच होने चाहिए. दैट इज नथिंग बट द को वैलिडेशन लेबोरेटरी. मतलब एक मेथड दूसरे लेबोरेटरी में ट्रांसफर हो रही है फॉर द validation purpose to analyze the particular sample in analysis. ठीक है. Okay, so can we move for the next method? Revalidation and partial validation, that is a complete or partial method validation as per 1225 validation of complementary process by the receiving laboratory. There may be the some spelling mistake, I will correct that particular mistake. So what is revalidation or partial revalidation? Validation किया हुआ मेथड है लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो यू वांट टू रीवैलिडेट योर मेथड. और पार्शियल वैलिडेशन मींस व्हाट? जैसे कि इमेजिन करो सेम एग्जांपल लेते हैं, ग्रेप्स का एनालिसिस करना है. सो उनके यहाँ पे ग्रेप्स का एनालिसिस AAS इंस्ट्रूमेंट पे होता था, दैट इज एटॉमिक ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट पे. पर एज पर जैसे कि अभी तक उनके पास जो भी सैंपल्स आते थे या फिर इमेजिन करो कि उनका खुद का ग्रेप्स का प्रोडक्शन था एंड उसके बाद मतलब कोई
फार्मर रहेगा, उनके पास वो फार्मर के अंदर बहुत सारे ग्रेप्स आते होंगे और वो मार्केट में करने से पहले उनको टेस्टिंग करना है, ठीक है, पेस्टिस। तो उसने सोचा कि किसी और के लेबोरेटरी, जैसे मैं मेरा खुद का करता हूँ, एंड उनके पास एएस का इंस्ट्रूमेंट था। अभी आउट ऑफ इंडिया उसको सैंपल सेल करने हैं, एंड आउट ऑफ इंडिया सेल करने के लिए एफडीए का रिक्वायरमेंट है कि यू सपोज टू टेस्ट योर सैंपल आईसीपीएमएस नॉट एएस, मतलब हम लोग को एएस से टेस्टिंग किया हुआ सैंपल नहीं चाहिए, हम लोग को आईसीपीएमएस से टेस्टिंग किया हुआ रिजल्ट चाहिए। सो डेफिनेटली अभी जो सैंपल का एनालिसिस, मतलब तुम लोग के पास ऑलरेडी मेथड है, अभी आईसीपी हो इसके लिए सैंपल सेम होता है, ठीक है। सो इमेजिन करो कि तुम लोग के पास ऑलरेडी मेथड डेवलप एंड वैलिडेट मेथड है फॉर एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड ऑफ ग्रेप्स जूस विद द हेल्प ऑफ एएस। instead of AS you are just using different instrument. So sorry, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर से लेकर डाइल्यूशन प्रिपेयर करने तक बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएंगे, एक इंस्ट्रूमेंट पे दूसरे इंस्ट्रूमेंटेशन पे तुम लोग जो स्टैंडर्ड ग्राफ बनाओगे एंड तुम लोग की जो यूनिट रहेंगी वो, दैट इज नथिंग बट द रीवैलिडेशन और पार्शियल रीवैलिडेशन। मतलब पूरा मेथड वैलिडेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो सैंपल का सॉरी आईसीपीएमएस पे एनालिसिस करने के बाद जो तुम लोग वैलिडेशन का क्राइटेरिया देखते हो ना, सिस्टम सुटेबिलिटी एंड लीनियरिटी, वो सारे पैरामीटर तुम लोग को अभी विथ रिस्पेक्ट टू आईसीपीएमएस से चेक करने, ठीक है। डेवलप मेथड मतलब एक्सट्रैक्शन के लेकर बहुत सारे टेक्स्ट ऑलरेडी डेवलप है एंड द प्रोसीजर इज सेम, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं तुम्हारे मेथड में उसको बोलते हैं रीवैलिडेशन और पार्शियल वैलिडेशन, मतलब सम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड इज वी आर validating. So complete or partial method validation per, this is 1225, this is nothing but the code number of this particular guideline. जैसे मैंने बोला ना, USP has launched the new guidelines or newer issues in method transfers जो 2006 में आया है, तो वो particular guidelines का ये कोड है। सो द वैलिडेशन इज प्रोसेस बाय रिसीविंग द लेबोरेटरी। अभी इसके अंदर क्या है, जो उनके क्राइटेरिया है एंड तुम्हारे जो क्राइटेरिया है, तो ये शुड बी द मैच, मतलब उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है एंड तुम लोग अभी सी इंस्ट्रूमेंट मतलब एएस से करो या फिर आईसीपी से करो। ऐसा नहीं है कि एएस के अंदर किया था तुम लोग का 10 mg आया एंड आईसीपीएमएस से किया था तुम लोग का 5 mg पेस्टिसाइड आया या फिर ज्यादा पेस्टिसाइड आया, ऐसा नहीं होता है। सेंसिटिविटी डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंजेस होगा लेकिन क्वांटिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेगी, हार्डली विद इन द स्मॉल पॉइंट में तुम लोग का रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट हाईली क्या बोलते हैं सेंसिटिव और हाईली एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो कैसे रहेगा कि इंस्टेड ऑफ 10 mg के हिसाब से वो 1 mg के सैंपल का भी एक्यूरेट रिजल्ट देता होगा, दैट इज ओनली डिफरेंस आएगा, अदरवाइज रिजल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो आइडियली जो तुम लोग के क्राइटेरिया है मतलब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, it should be the matches when you are transferring the method from this laboratory to another laboratory. So this is nothing but the revalidation or partial validation. uh, let's move for the next slide. So I think only 2 3 slides are left, so we will see the, I hope so I can complete, but I feel it is difficult. So do you understand with respect to these all the three methods of method transfer? Just write yes in chat box so I can move for the next slide. Okay. So I just read this criteria because only 2 minutes are left. कि what are the criteria? Okay. So analytical method transfer checklist. मतलब अभी तुम लोग को क्या क्या up till now हम लोग ने क्या क्या देखा कि what is exactly analytical method transfer. उसके बाद हम लोग ने देखा कि when generally we are transfer the method, कि exactly method transfer कब होता है, and whenever we are transfer the method, this transfer method are divided into the 3 particular criteria. उसके अंदर की फर्स्ट 3 टाइप्स, तो फर्स्ट टाइप जो था वो था तुम लोग का कंपैरेटिव टेस्टिंग, नेक्स्ट को वैलिडेशन लेबोरेटरी एंड रीवैलिडेशन। सो दीज आर द 3 टाइप्स। अभी तीनों में डिफरेंस क्या है? को कंपैरेटिव टेस्टिंग इज नथिंग बट द सेम मेथड सेम सैंपल वी आर परफॉर्मिंग ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस। को वैलिडेशन मतलब एक लेबोरेटरी में मेथड डेवलप हुआ है, किसी और लेबोरेटरी में वी आर वैलिडेटिंग द मेथड एंड दोनों का रिजल्ट चेक करना है। रीवैलिडेशन इज नथिंग बट द कि मेथड का कुछ पार्ट जो है वो चेंज हो चुका है, सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर रीवैलिडेटिंग द मेथड। सो रीवैलिडेशन के लिए हम लोग मेथड ट्रांसफर करें, मतलब सेम मेथड वन इंस्ट्रूमेंट से किसी और इंस्ट्रूमेंट पे या फिर किसी और इक्विपमेंट में पैरामीटर थोड़ा बहुत चेंज करके हम लोग मेथड ट्रांसफर करें। तो उसके अंदर जब मेथड ट्रांसफर करें तो व्हाट आर द इश्यूज आर कमिंग उसको चेक करना इज नथिंग बट द रीवैलिडेशन और पार्शियल वैलिडेशन। So these are the 3 types of method transfer. So I think we will stop here because the time is less than 1 minute. So we will continue this particular slide in your afternoon session.
that is analytical method transfer checklist.